बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिग बॉस सीज़न 1 में मेरे साथ थी स्मिता और 3 साल हो गए उसको। आज सब मिलने वाले हैं। हम भी सारे कॉन्टेस्टेंट्स फ्रेंड्स मिले नहीं है काफ़ी साल। पैंडमिक ख़त्म हो गया है, आई होप ख़त्म हो गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, सब मिलने वाले हैं। हम लोग अक्सर इवेंट्स में मिलते हैं, शूट्स पे मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बातचीत होती है। it's fun to interact and so amazing। और बहुत खुशी है कि ये स्मिता ने बिग बॉस मराठी का रीयूनियन जैसा एक इवेंट कराया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड आई एम श्योर द पार्टी इज गोना बी रॉकिंग। थैंक यू। It's a Big Boss reunion party and there are so many friends. So how excited are you for tonight? I'm very excited today, and actually, it's been kind of a tradition that after every season of Big Boss Marathi, I usually like to host a party so that we all can come together and forget all the negativities in the Big Boss and remember all the positive things. So after the first season, we had a party. After the second season, we had another party. Third season के बाद, obviously because of the pandemic, it was getting a little difficult to organize this event. But finally, this is the right time, and all three seasons are coming together. इतना ही नहीं, तो जो हिंदी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं हिंदी बिग बॉस में, थोड़े लोग बाहर आज काम कर रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे मुंबई में हैं, तो आज ज़रूर वो भी आएंगे। दे वुड लाइक, आई मीन, सो इट्स नॉट ओनली मराठी, it is for all my friends, everybody. Actually, in fact, everybody who's been a part of Big Boss is welcome to my party. I would love to have them all because this entire journey has really made us rediscover a lot of things about ourselves. And it is just a reminder for us कि वो जो discovery हुई है, जो rediscovery हुई है, it's kind of a remembrance, or you can call it a reminder for us to still be grounded and connected, because Big Boss is such a platform कि किसी को भी इधर से वो इधर ज़मीन पे ला देता है, और वो ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है। And this is somewhere it is for us to be together and be connected to each other and be grounded as well. Can we see you in the Big Boss? No, I think, you know what, I've already done the Marathi Big Boss, so I'm pretty happy with this entire journey. I think Hindi again, I don't think so, but I think I'm good with this one journey. It was really a beautiful journey for me, so बहुत अच्छा लग रहा है. And first of all, yes, I want to definitely thank BPM for being the location partner and hosting this event with me. So thank you so much, BPM. And also I would like to thank Picture and Craft, my very good best buddy out here. Come here. Actually, she doesn't want to come. She's shying away. Parul is here, right here. Thank you so much, Parul, because without you, this event was simply not possible. And we also have very important partners this time. We have Scribble and Pop events. And I would like you to meet my friend. Come. So I have my friend Kunjal with me here. And the entire she has curated the entire decor of this place, which is very amazing. I think it's beautiful and it's very classy. I loved it. So I think she's been an important part of my this party today, this evening as well. Thank you so much. Thank you so How was much. your experience? Was good? Great. Okay, the evening is still about to start. I would definitely ask her that probably by the end of the evening. So Thank you. thank you. Oh my God, कौन favorite रहा? Of course, I mean, see, everybody has their pluses and minuses. कोई चीज़ें किसी में अच्छी लगती है, कोई चीज़ें कोई में खटक जाती है. But I think हिंदी की बात करें तो obviously we had very good players this time. It's very important how you look at the game. कि आप इंसान अच्छा ढूंढ रहे हो या एक प्लेयर अच्छा ढूंढ रहे हो. Everybody has different mindsets to it. So I will not say take a particular name. अगर कोई मुझे इंसान अच्छा लगा है, as a human being अच्छा लगा है, किसी की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, किसी का बर्ताव अच्छा लगा है, so it is very different. I will not like to name one person because everybody is very different in their own way and everybody is very special, and that's the reason they are in Big Boss. It's not an easy game. बहुत आसान नहीं है यहाँ रहना, वो भी इतने दिन. तो everybody is unique in its own way. Thank you. यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे कैमरा
been an important support for me. Thank you. So guys, let me introduce you. This is Sushant Shelar, a very dear friend of mine. Oh, rolling is it? Oh. And he's been a very important support for me while I was in the Big Boss house, but moreover while I was still there and from outside for some particular, I think he would have been the finalist for sure, but for some particular reasons he had to leave the show in between, but due to health reasons, yes. But but he has supported, he stood by my side rock solid and was supporting me from outside, so thank you so much. Sushant, I still remember. मुझे याद आ रहा है, I know, I remember all those moments that you were really working hard and you were out and you were really doing everything that you could do and wanting me to win. Thank you so much, and thanks to you, because of you I think I was there in the finale as well. Thank you. So, what do you want to say about the party? कुछ नहीं, बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल के बाद हम सारे लोग मिल रहे हैं। एक तो 2 साल का लॉकडाउन का पीरियड था, वो सभी के लिए टफ था, और ये पार्टी जो है ये एक बहाना है, लेकिन स्मिता गोंदकर ये जो कुछ भी अरेंज कर रही है पिछले 3 सालों से, वो सिर्फ वही कर सकती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, सबको मिलने के लिए बहुत तरस रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज की शाम बहुत रंगीन होने वाली है। थैंक यू। बिग बॉस में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन टास्क अगर खेलने को ना मिले तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बिग बॉस में अगर कोई मेरा सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त है तो वो स्मिता गोंदकर है, और वही मतलब मैं आपको इस बहाने बताना चाहूँगा। थैंक यू। नॉर्मली मराठी बिग बॉस से हिंदी बिग बॉस में काफी जाते हैं, क्या आपको हिंदी बिग बॉस में हमसे इंस्पायर किया? जी, मैं बहुत खुशी है, मैं मराठी बिग बॉस में पार्टिसिपेट था और मैं एक ही बिग बॉस से खुश हूँ। अभी मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता। थैंक यू। बताइए। ओके मैम, बिग बॉस रीयूनियन पार्टी है, बहुत सालों के बाद ऐसी पार्टी रीयूनियन गेट टुगेदर इन फ्रेंड्स की किस तरह की एक्साइटमेंट आज की? मुझे नहीं लगता ये कोई और कर सकेगा स्मिता के अलावा। आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्योर सोल एंड शी इज़ अ वेरी गुड सोल, एंड ये थॉट भी किसी के दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से उसको करके दिखाना, इट्स नेक्स्ट लेवल। सो आई थिंक हर साल वो पार्टी रखती है, जैसे सेकेंड सीज़न के लिए भी रखती थी, अभी ये थर्ड सीज़न है, तो थर्ड सीज़न में तीनों सीज़न के लोग हैं। हम भी काफ़ी कम मिले हैं, मैं तो थर्ड सीज़न में गई थी अंदर, बट ये जो वो मौका देती है एक दूसरे को पहचानने का, घुल मिलने का, आई थिंक ओनली स्मिता कैन डू इट, बिकॉज शी इज़ अ लवली पर्सन एंड आई जस्ट लव हर। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? यस ऑफ कोर्स, माय सीजन वाज द फर्स्ट सीजन, पहला सीजन था, और इस सीज़न में अगर मुझे कुछ मिला है तो ऐसे 2 दोस्त कमाल के मिले जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। उसमें से एक है स्मिता ऑफ कोर्स, और दूसरा आस्था। व्हाट डू यू थिंक बिग बॉस मराठी और हिंदी बिग बॉस में क्या डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज? गेम इज़ द सेम ओनली, आई डोंट थिंक सो गेम इज़ डिफरेंट। दोनों जगह गेम सेम ही है, खाली लोगों का तरीका उसे खेलने का अलग है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्रियंस होते हैं तो मराठी लोग होते हैं, तो मराठी होता है, अब हर किसी के इस मराठी लोगों के सोचने का तरीका अलग है। वहाँ मतलब नॉर्थ से भी होते हैं, साउथ से भी होते हैं, गुजराती, तो हर इंसान अलग अलग प्रांतों से आता है, तो सोचने का अलग, तो दे रिएक्ट डिफरेंटली, सो इसलिए वो गेम बहुत अलग दिखता है। क्या आपको बिग बॉस हिंदी एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं? मतलब क्या हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं? बिग बॉस में देखिए अभी ऑलरेडी जब मैं गेम जानती हूँ, मैं गेम समझती हूँ, मुझे पता है गेम कैसे खेलना, वो बेवकूफ़ थोड़े मुझे वापस बुलाएंगे। तो सी यू, बाय। Smita's party is always special.
Ami, when we came out of Big Boss, even then also she had hosted a party for us. She has this such a sweet gesture that she makes every year, makes it a point to bring all of us together. Memories are of course coming back because our season seems like it happened ages ago because of the lockdown, but now all of us are going to meet today. We're just going to have fun. That is all I'm looking forward to. Big Boss memory would you like to share that's always there in your heart? The best memory that I can remember from my season is when I was standing on that podium where the whole journey of our Big Boss season was shown to me, and then when Big Boss praised me and said that the house and Big Boss, whom I had considered as a father figure, would never forget a daughter that he got in that season. I think when he said that, that was very emotional for me, and that's absolutely memorable for the rest of my life. Now the kind of response Big Boss Marathi is getting, initial stage the Big Boss Marathi was not getting that kind of response. Now you are the part of that. How do you see the Big Boss Marathi and how do you see the Big Boss Hindi? I think the space is different. I think even there's a difference between two consecutive seasons of language. Let it be Marathi or Hindi or Tamil or any language that Big Boss happens in. The place, the space, the home, the house is made of the people it consists. So वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो 15-17 लोग वहाँ पे रहते हैं, वो सीज़न बनाते हैं, इसलिए हर सीज़न अलग होता है, हर सीज़न इंटरेस्टिंग होता है और एंटरटेनिंग होता है। हम लोग साथ में भी आ सकते हैं ना? हाँ। Big Boss reunion काफी टाइम से हम वेट कर रहे हैं। आज reunion किस तरह से excitement है? एक्चुअली बिग बॉस सीज़न 3 में हम थे और 3 के जो कंटेस्टेंट हैं हम 2-3 बार मिले हैं, लेकिन जो फर्स्ट सीज़न है, सेकंड सीज़न है, उनको सिर्फ हमने टीवी पे देखा है या फिर हम कभी मतलब मिले नहीं है। तो ये रीयूनियन जो है वो बहुत अच्छा है और हमें भी इनवाइट किया, तो स्मिता जी ने जो एक अच्छा गेट टुगेदर रखा है, तो हम बहुत खुश हैं कि हम सभी इकट्ठा होंगे और आगे भी जो है वो जो मिलकर आगे कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैं भी अभी सीज़न 3 में थी, थोड़ा लाउड नहीं ओके ना, सीज़न 3 में थी और फर्स्ट और सेकंड सीज़न के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं सेम लाइन में काम करती हूँ, ये तो बाहर से हम लोग तो मिलते रहते थे, हम लोगों की बातें भी होती थी। लेकिन ये था कि थर्ड सीज़न में जब मैं गई और मैंने देखा कि एक्टर्स बहुत कम हैं और कोई मॉडल है, कोई मतलब जैसे जय था, विशाल था, तो बाहर से आए हुए मुझे सब नए थे मेरे लिए। लेकिन ये जो मेरे पुराने जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा था अंदर कैसे रहना है, क्या करना है, लेकिन मज़ा आया। और स्मिता ने ये जो पार्टी आज अरेंज की है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये इस मौके पे आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड सीज़न के सभी लोगों को मिल सकते हैं और हम गेट टुगेदर कर सकते हैं। मैम सोशल की बात कर रहे हैं, सोशल में काम काफ़ी मंदिरों के लेके काफ़ी मदद कर, उसके विचार किस तरह से विचार आता है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ और जिस तरह से काम किया है इसीलिए जो देश में एक एग्रेसिवली में काम करती हूँ, इसीलिए बिग बॉस में भी बुलाया गया और मुझे एक अच्छा लगा कि ये सब जो है वो एक्टर एक्ट्रेस इसमें थे, लेकिन इस बार सोशल वर्कर भी उन्होंने बुलाया था। और जब सीज़न 3 में हम गए तो बहुत अच्छा थीम भी उन्होंने किया था, सब महिलाओं को लेकर थीम उन्होंने की, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत लोग कहते थे कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो पता चला कि ये पूरा रियलिटी शो है, आगे कुछ होता है ये हमें भी नहीं पता चलता है और कुछ हम वहाँ पे छिपा भी नहीं सकते, हम जैसे हैं वैसे वहाँ पे दिखते हैं। और वो अच्छा लगा कि लोगों के यहाँ पे हम 24/7 हम जैसे हैं वैसे पहुँचे, इसलिए वो बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म था तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। ओके।
memories are coming up in my mind, that what we were enjoying and what we were suffering from. And I'm eagerly waiting for next season. So let's see, let's hope for the best. Big Boss memory would you like to share? Actually, there are so many memories, but actually there are so many tasks, you know. But क्या share करूँ मैं? Actually, there is so much of mess in my mind. But every memory of Big Boss was very wonderful. We learned something and we experienced something new. So everything was so special. Whether it was negative, it was just there to teach us something, and whether it was positive, so it was just to enjoy over there. So everything is so special. Okay, so if you want to take any difference between Big Boss Hindi and Big Boss Marathi, what it is? Apart from language. There are actually so many differences. If you observe that Marathi crowd or Marathi Big Boss was quite aggressive. If you can understand, मतलब there was in Hindi, you know, even if someone touches like this, so they call it a Big Boss, ये violence कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं. पर मराठी में it was like so much of aggressiveness was there, and no one was ready to cool down or to calm down. And somewhere this aggressiveness was necessary also, and that was the thing which was there to, you know, differentiate the Hindi Big Boss and Marathi Big Boss. It was good also, it was bad also, but that was it. Okay, so now you are part of Big Boss Marathi. So if you get a chance for the Big Boss Hindi, will you go? I'll have to think a lot about it, you know, because when I came out of the Big Boss, now the reason was not that audience disliked me. Actually, my hand was fractured because of the violence happened in the house, and that's why I was so scared that I didn't want to go back. So if I'm sure that no kind of violence is going to happen, then I could think about it. But if there is such kind of crazy aggressiveness, then I don't think so I will take a chance. Okay, so apart from Hindi, is there any reality? Apart from that, Khatron Ke Khiladi is very nice show actually. That show is good for aggressiveness, because show is not for that physical violence. So yes, for something different, if I want to explore, then Khatron Ke Khiladi will be the right show. Thank you so much. हर साल अटेंड करता हूँ, वैसे भी स्मिता बुलाती रहती है और बहुत अच्छा लगता है जब हम बिग बॉस के न्यू कंटेस्टेंट से मिलते हैं, और एक अच्छा रहता है कि हम पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं लोगों के साथ, और जो नए लोग होते हैं वो भी अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। बिग बॉस की बात करें, मराठी बिग बॉस स्पेशली क्या देखते हो जो काफ़ी स्पेशल है हिंदी बिग बॉस के? मराठी बिग बॉस में सबसे पहले तो यार ये महाराष्ट्र को भी कनेक्ट करता है। अभी मैं हिंदी बिग बॉस से हूँ, बट मैं मराठी भी देखना इसलिए पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मराठी सीखने को भी मिलती है, आगे काम आएगी। और नेचर थोड़ा से डिफरेंस होते हैं सबके, जैसे अभी हिंदी बिग बॉस में थोड़ा सा एग्रेसिव होते थे, यहाँ थोड़ा काम से भी खेलते, थोड़ा आराम से ये लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से बिग बॉस हिंदी की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी कमाल की जर्नी थी। उसके बाद कभी आपको ऐसा मौका मिला था कि हम फिर से आगे बिग बॉस? नहीं यार, बिकॉज बिग बॉस एक बार करना था, कर लिया। अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अभी नेटफ्लिक्स कर रहा हूँ मैं, जमुना पार, गुराड़ी कांड, जो दिल्ली के 13 लोग एक साथ जो जिनने फांसी लगा ली थी, उसमें मैं लीड कर रहा हूँ। तभी ऐसे कंटिन्यू प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अमेजॉन प्राइम के 9 सीजन साइन किए हैं, वो चल रहा आता है, कॉल आते रहता है रियलिटी शो के लिए, बट अभी फ़िलहाल के लिए एक्टिंग में मूव कर रहा हूँ। ऐसा कोई रियलिटी शो जो आपको बिग बॉस के अलावा बहुत सारे अलग-अलग रियलिटी? बिग बॉस के बाद अगर कहीं जाना चाहूँगा तो खतरों के खिलाड़ी।
अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, बिकॉज हम सब एक दूसरे को जानते हैं, 3 सीजन हो चुके हैं, पर कभी ऐसी सबसे मुलाकात हुई नहीं। एंड बीच में जो भी सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे तो और भी मुलाकात होना मुश्किल था। बट आज व्हेन रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर, वी आर अलाउड टू मीट, वी कैन हग, वी कैन ग्रीट। तो आई थिंक आज सब लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आई थिंक इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। यू नो, बिग बॉस हैज़ बीन अ वेरी फैसिनेटिंग राइड, एंड हर एक की अपनी अपनी जर्नी हम यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एंड अपने ही लोगों को दोबारा एक बार यहाँ पे मिलना बहुत ही खुशी की बात है। बिग बॉस हिंदी में नज़र नहीं आता, पता नहीं यार, मैं बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज बिग बॉस हिंदी मैंने अभी तक किया नहीं है। बट आई थिंक व्हाट्स ऑलवेज स्पेशल अबाउट मराठी और बिग बॉस मराठी इज़ दैट बीइंग अ महाराष्ट्रन आई कुड से कि मैं लोगों को रिलेट कर सकता हूँ, लोग हमें रिलेट कर सकते हैं। सारे तीनों के तीनों सीजन्स बहुत ही फैंटास्टिक हुए हैं, एंड आई थिंक एक डिग्निटी के साथ डिग्निटी मेंटेन करके सारे तीनों सीजन्स सफलता से कामयाब हो चुके हैं। एंड आई थिंक महेश मांजरेकर एन इनक्रेडिबल होस्ट अलॉन्ग विद सलमान खान इन हिंदी। सो आई थिंक मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन आई थिंक मेरे बीइंग अ महाराष्ट्रन मेरी जो जर्नी थी बिग बॉस मराठी में वो काफ़ी मज़ेदार थी, बढ़िया थी। तो आई थिंक वेल दैट्स अबाउट इट। मैंने एक्चुअली ये सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक येस, कभी अगर एक ज़िंदगी में ऑफर आती है तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अप टू द सर्कमस्टांसेस दैट टाइम कि मैं कौन सा शो कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो वो सारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि मैं हिंदी करूँ या नहीं। बट आई थिंक इट इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म फॉर एनी एक्टर और एनी इंडिविजुअल हु वांट्स टू मेक अ नेम। सो आई थिंक या आई माइट डू। स्मिता जो है ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने इन्विटेशन दिया है मुझे, तो मुझे आना ही पड़ेगा, बराबर है। आप लोगों ने तो देखा है ना सबने, आप लोगों ने तो देखा है ना सबने। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बस स्टेट का क्या बोलते हैं कि स्टेट का मीडिया है क्या? मैंने कितने गुण खिलाए हैं हिंदी में, आपको पता नहीं है? फिर क्या डिफरेंट आप देखते हो मराठी में, क्या फर्क आपने देखा? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंटेस्टेंट थे तो मराठी वाले ना थोड़ा ज़्यादा नखरा करते थे, और मुझे ज़्यादा प्यार जो मिला वो हिंदी में मिला, जो कि एज ए कॉन्टेस्टेंट। जैसे भी राखी आई तो उसने मुझे दादा बोल दिया, तो करण ने भी दादा बोल दिया, जो भी लड़कियां थी अंदर और जो भी जेंट्स थे वो सब मुझे दादा ही बुलाते थे। इधर नखरे बहुत ज़्यादा करते थे मराठी वाले। हाँ, उनको पता चल गया है कि अभी मराठी का स्टार कौन है, मराठी इंडस्ट्री में स्टार कौन है, कौन है? नहीं, मुझे निशात ने कॉल किया था कि शमिता का बर्थडे है, लेकिन उस दिन मैं सांगली में था, तो सांगली से मुंबई में आना और 1-2-4 घंटे में नहीं हो सकता था। और एक रिलेशन जो अच्छे बने, शमिता के और मेरे कुछ दंगे भी हो गए थे, तो मैं बोला कि नहीं जाना है मुझे, चलो। लेकिन सुनीता जो है ना, ये पहली लेडी है जिसको पता था कि मैं बिग बॉस मराठी में आ रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्टार बनोगे और खूब खिलाओगे, और मैंने खिला दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो बायस रिजल्ट है उसका, जब मैं बोला कि वो सुनीता को जिताना चाहते थे, मैंने बोला आपको पता होगा कि अपना स्टेट मीडिया जो है, जो भी अपने चैनल है उस पर मैंने बात की थी, तो जैसे ही मैंने मेरे दिल खोल के बातें की कि क्या उधर पंगा हुआ था सलमान का और मेरा, वो ये सब, तो उन्होंने ये बायस में कर दिया कि महाराष्ट्र की लड़की जीते। पहले तो वो सुनीता को जिताना चाहते थे, वो मुझे पता है। हाँ, और उसने जाके प्रतीक को भी नहीं जिताया, करण को भी नहीं जिताया। अगर देखा जाए तो करण भी डिजर्विंग था और प्रतीक भी डिजर्विंग था, क्योंकि पूरे 100 दिन उन्होंने निकाले थे अच्छे से।
और एज ए इंसान वो बहुत अच्छे हैं दोनों भी, करण और ये प्रतीक। काफी कंट्रोवर्सी हुई आपकी हिंदी बिग बॉस के इलेक्शन के बाद, अब किस तरह का सिचुएशन है, क्या कुछ नहीं, उसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। कंट्रोवर्सी का मैटर नहीं रहता कि भाई आप कोई क्रिया करोगे, आप कुछ बोलोगे। अगर आप मुझे दादा बोलते हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर मुझे आप तिरछी नजरों से देखते हो तो मैं आऊँगा फिर। वैसे ये नहीं होता कि रिएक्शन मैंने दी, सलमान का जो मैटर था उस पर मैंने रिएक्शन दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडोमोड चाहता है, इंडोमोड ने मुझे मराठी से लेके हिंदी तक पहुंचा दिया, तो बुला लेंगे, वो शायद बुला लेंगे, क्योंकि ये तो हर वक्त होता रहता है। क्योंकि एक्शन किया था सलमान जी ने, तो उसके बाद में मैंने रिएक्शन दिया, और मैं रिएक्शन कभी भी बदलता नहीं हूँ और ना कभी बदलूंगा। पर अगर आप फिर से हिंदी बिग बॉस में आए, होस्ट तो सेम ही रहने वाले हैं सलमान सर, तो क्या आप फिर से अगर जाओगे तो सलमान सर को ही अपना दोस्त करोगे? नहीं करेंगे ना, ये क्या है। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंट्रोवर्सीज होती है, तो इंडस्ट्री में ही रहना है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी फिल्म लेके आ रहा हूँ, आपको तो पता ही है। अभी उसका हीरोइन का नाम मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा वो कवर करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे। करूँगा, ये भी फिल्म करूँगा। लेकिन आज थोड़ा सा डर गया हूँ मैं सुबह। आपको पता होगा कि सब चैनल पे एक न्यूज़ चल रही है कि भाई ये चौथी लाट आने वाली है, ये वेव आने वाली है चौथी, तो थोड़ा सा सहम गया हूँ। वो दिखाई भी देता है मुझे। क्या भाई ये लोग हमको मरवा देंगे क्या? ये जो हमारी जो कि फर्स्ट से लेके हाथ तक जो लोग रहते हैं यहाँ, मर जाएंगे यार, काम नहीं मिलेगा किसी को। पता है 2 साल से हम क्वारंटाइन थे। अगर ये महाराष्ट्र शासन या ये कोई अपना पूरा जो केंद्र सरकार जो है, अगर ये वेव का नाटक करेगा ना, तो सब मर जाएंगे यार, खाना पीना नहीं मिलेगा किसी को। तो अभी के अभी इसको मैं चाहता हूँ आपके जरिए बताना कि पूरा प्री प्लान करिए कि चाहे अभी स्कूल बंद कर दो, क्यों बच्चे और कॉलेज के लड़के लड़कियाँ क्यों घूम रहे हैं यार? उनके वजह से बहुत क्या बोलते हैं उसको कि पॉज होता है, बहुत होता है ना, उसको बंद करके घर में भेजो, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये सरकारी कामकाज चलने दो यार। अगर ये फिर से लॉकडाउन हुआ ना, तो मर जाएंगे हम महाराष्ट्र वाले पूरे, बस। Where is the look? Where is the look? God, I get very nostalgic because I was in Big Boss season 3, which was in the Hindi Big Boss, not the Marathi one, and it's very close to my heart because I was just a designer. People knew me as a good designer, but I became a household name, and it completely changed my life. I became like so famous that till today people remember me from Big Boss. I think so. It's a global platform where people emote their emotions. It's a show of love. It's a show of hatred. So I enjoyed it. All the contestants of my season Big Boss, they're all of my friends. Cash is here. Cash was in season 1, I think so. She was in season 1, and I think so. It's a great show. How do you see the reality See, I know totally Marathi, because I believe that Kishori Sahni was there in this in Marathi because I saw a couple of episodes, but I think so. It's a very beautiful platform that every regional think they are having a Big Boss of every region. So I think it's very good for the channel. निशा मेरी फैमिली है, शी इज़ माई फ्रेंड, एंड मैं उसको जानता हूँ, उसने बहुत डिग्निफाइड से खेला है, ओके, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर द वे शी प्ले, एंड भगवान करे शी शुड बी ऑलवेज हैप्पी. आई ओनली कैन विश हर वेरी गुड लक. नहीं, ये मेरा पारिवारिक मैटर है, मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं बात करूँगा. थैंक यू सो मच.
गिव योर बाइट, मैंने बोल दिया। अकेले क्या हो गए? Where do you want me to begin? You guys don't know, but I'm a very big fan of Big Boss Marathi also. I've always watched it and always tweeted about it. And I really like Smita. Smita was the most beautiful, most classy and well-dressed person of season 1. आणि मला नाही वाटत की तुझ्यापेक्षा जास्त कोणी चांगले कपडे घातलेच असणार. सेकंड किंवा थर्ड. थँक्यू सो मच. छान कपडे घातले. व्हेरी क्लासी. थँक्यू. व्हेरी नाईस. I see no differences. I think both of them are really good. They are both equal. दोन्ही धाडक आहेत, कडक आहेत. काही डिफरन्स नाही. दोन्ही एका जागेवरती सलमान सर आहेत, एका जागेवरती महेश सर. Actually, even what happens is emotions are same, moods are same. You're going to react the same, so it's no different. It's the same thing. Yeah. Tasks are also as different. Watch colors. I don't know. बॉस की पार्टी में लॉकअप तक है. मुझे अच्छा लग रहा है लॉकअप. मतलब ये अभी आप कॉन्ट्रोवर्शियल मत पूछो. नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी फेयर है, अच्छा है. Have you been watching it? Not much. Little bit here and there. Following it. मुझे सोशल एक्सपेरिमेंटल शोज बहुत पसंद है. I mean it's very interesting for sure. और उधर जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं अभी एक महीने के बाद उनको एक्चुअली लगने लगा कि वो जेल में वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, तो इनसे सोशल एक्सपेरिमेंट. मुझे पहले फ्लावर लेकिन अभी मुझे लगता है पायल का. अच्छा, अभी इसके बारे में अब तो मैं ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती हूँ. मुझे खुद को नहीं पता होता कि कल क्या लगेगा. तो अभी नेक्स्ट सीजन में जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन एक बात है कि अगर जाऊँगी तो पहले वाली कैश आप नहीं देखोगे जो थोड़ी सी सैली हुई या थोड़ी क्लासिक हुई. अभी थोड़ा सा अलग ही नेचर है जो फर्स्ट सीजन में. बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे तो मैं सीज़न 2 में था, मराठी में फाइनल्स में था, और उसके बाद में पहला सीज़न भी मैंने फॉलो किया, दूसरा सीज़न भी मैंने फॉलो किया. तो एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं. वैसे ही आज का इवेंट है और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सुशांत लालजी का बोलकर जिन्होंने इस ऐसे यूनियन के बारे में सोचा. और हम सब लोग यहाँ पे आज मिलेंगे, गप्पे हाकेंगे, पुरानी बातें होंगी घर के अंदर की बाहर की, और बहुत अच्छा लगेगा. वी आर ऑल वेरी मच एक्साइटेड टू मीट ईच अदर वंस अगेन आफ्टर. बहुत सारे लोगों को तो मैं शायद 2-2.5 साल के बाद मिलूँगा आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है. बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, कलर्स मराठी, एंडेमोन शाइन, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा. उन्होंने इतना ब्रिलियंट शो डिज़ाइन किया है कि ये हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु, कभी जिस लैंग्वेज में भी आप करोगे ये हिंदी होगा शो. मैं खुद वैसे फिल्म की बैकग्राउंड से आता हूँ. मेरी पहली फिल्म मैंने की लेके, उसके बाद और 3-4 फिल्में मराठी में मैंने की थी. और जो रिकग्निशन मुझे इस शो ने दिया, मैं मानता हूँ कि वो मुझे मेरी पहली जो हिट फिल्म की सुपर हिट फिल्म थी उससे भी नहीं मिला. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा शो है. एक इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत ही मैं मानूंगा कि बहुत उपयुक्त और बहुत करेक्ट शो है. और मुझे तो बहुत लोगों ने प्यार दिया घर में मराठी में. आणि मराठी बोलायचं झालं तर बिग बॉस मराठी हा मला वाटतं महाराष्ट्रात टेलिव्हिजन
वरती चालणारा सगळ्यात पॉप्युलर आणि सगळ्यात मोठा शो आहे. त्यामुळे त्याच्यातनं जे तुम्हाला मिळतं आणि त्याच्यातनं एक संधी तुम्हाला मिळते, इमेज आपण म्हणूया माणूस म्हणून तुम्ही कसे आहात हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची एक संधी खूप छान संधी मला मिळाली, सगळ्यांनाच आम्हाला मिळाली आणि आम्हाला सगळ्यांनाच त्याचा खूप फायदा झाला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एंडेमोल शाईन, कलर्स मराठी आणि सगळे बिग बॉस चे मित्र मेकर्स. ते विचुकले पण आहेत, मला आता दिसले. थँक्यू सो मच. Yeah, Adish. Can I just have your Insta handle? Right? Yeah. Akshay. किस तरह की शाम आप देखते हो? जीते जीते रह गए. जीता एक्चुअली जीता इन्होंने बिग बॉस विनर ये है, लेकिन टू शेयर द एक्सपीरियंस इट वाज वेरी नाइस और बहुत ही मज़ा आया. हम चारों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और ये सीज़न 3 जो था वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि हम सब की दोस्ती जो थी वो बहुत यूनिक थी और इसलिए सीज़न 3 इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ. सर आप क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस किताब आपके नाम है, किस तरह की फीलिंग होती है और दोस्तों से जब मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती है सर ऐसी पार्टियों में मिलते? वैसे तो ये मेरी पहली पार्टी है, मैं ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं हूँ, लेकिन आज मैं शूट करके आया कि मुझे करना है, आज सबको मिलना है. क्योंकि जैसे सीज़न 3 में 17 पावरफुल पीपल थे, वैसे सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों सीज़न के सब लोग आने वाले हैं, सब बिग बॉस के पावरफुल पीपल. सो उनके साथ मिलना था, उनके साथ बातचीत करनी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा था. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं बिग बॉस सीज़न का एक पार्ट था और एक विनर बन गया. एंड मज़ा आ रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. और अगर आपको चांस मिला, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मली बिग बॉस कंटेस्टेंट हो गए, मराठी कंटेस्टेंट हो गए, विनर हो गए, बिग बॉस हिंदी में जरूर जाते हैं. अगर आपको चांस मिला तो क्या आप जाओगे? मैं हमेशा बोलतो, मराठी में बोलतो की माझ्या प्रेक्षक मायबापांना जे हवं आहे ते मला करायचं. मतलब मेरे प्रेक्षकों को, जो मेरे फैंस हैं, उनको जो चाहिए वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ. और अगर उनको उनकी इजाज़त है, उनको लगता है कि मैं उधर जा सकता हूँ, तो यस मैं जाऊँगा. मुझे अच्छा लगेगा जाने का. सर हाउ डू यू सी सलमान सर एज अ होस्ट? क्या आपको कभी बड़ी स्क्रीन पे आप सलमान सर अंदर से देख सकते हो? क्या हम आपको देख सकते हो अंदर रूम में आप सलमान सर को देखते हो? सलमान सर का मतलब एज अ होस्ट मैं जज करने वाला मतलब कौन होता हूँ क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली अदरवाइज ऑल्सो एंड बिग बॉस एज अ होस्ट ऑल्सो. बिकॉज मराठी शो जो है वो भाई सर होस्ट करते हैं और उतना ही पावरफुली करते हैं जितना सलमान सर करते हैं. सो रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है. और इस सीज़न में तो वो आने वाले थे हमको मिलने के लिए शायद, लेकिन लगातार में कुछ गड़बड़ होगी इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए हम उनको फेस टू फेस देख नहीं पाए. लेकिन स्क्रीन पे जो भी देखा और इन्होंने आई एम लकी फॉर दैट कि इन्होंने इस टाइम सलमान ने मेरा नाम लिया था कि कॉम्बिनेशन का टास्क था तो सबसे मेरा सेफ होने वाला नाम मेरा था और वो सलमान सर ने खुद किया था. तो उसके लिए आई एम फीलिंग लाइक यू आर इज अ लेजेंड मैन. क्या कुछ कहना चाहोगे आज की शाम की बात? जी आज की शाम की मैं बात करूँ कितने ज़्यादा आज के एक्चुअली शाम ही कुछ अलग है. द थिंग इज़ कि आप जब टीवी पे देखते हो तो बिग बॉस आपको सिर्फ 17 लोग देखते हैं, लेकिन अभी आपको 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पे दिखेंगे. तो दिस इज़ अ थिंग कि आप दिस इज़ फैमिली. बिग बॉस इज़ अ फैमिली. जब फैमिली का रीयूनियन होता है तो आपको बहुत मज़ा आता है. सो आई एम जस्ट हैविंग अ फन एंड मीटिंग एवरीवन एंड हैविंग अ चैट विद देम. दोस्तों से मिलते, विनर से मिलते तो पहली क्या बातें होती है विनर से? यार मैं सच कहूँ तो मैं इसको विनर की तरह देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा दोस्त है पहले. तो विनर हमें बहुत हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक दोस्त ही जो हमारा दोस्त वहाँ बना वो विनर हो गया है. मध्ये येऊ का? थोडं बॅलन्स करायला फ्रेंड. Ma'am, what do you want to say? All the winners are here, Yes. all the players are here. So what do you want to say? Oh, they've been. This season was really very different. As every season has been different, this was really exciting. This, I think, one of the seasons which had very high TRPs, and these guys made it. I think this is one of my favorite teams. I mean, groups बढ़ते हैं यहाँ पे, which is very obvious. But this is my favorite group that is here today, and I'm very happy that they're here. Thank you so much. Thank you.